guys, welcome back to my channel. Today we are going to talk about dark under eyes. So I've been getting a lot of question on dark eye circles, and I have been trying a lot of things since I am one of you and I am suffering the same thing, and I've tried multiple things but nothing worked, and I finally cracked the code. I won't say that it is fully gone, but it is definitely getting better. So watch this video till the end because I'm also gonna show you some temporary hacks to hide it like instantly, because skincare can take some time to heal it, but you can use some temporary tricks so you can start hiding them right away. So in this video, we are going to discuss reduction of dark eye circles without any medications. Well, dark circles कोई disease नहीं है, so it can take a lot of time to heal and understand why it is happening. I would say, I feel it's more like a sign that your body sends to you so that you can, understand what kind of problem you are facing. So let's say if you're having acne on a certain region, that can mean that you have some problem. For example, कहते हैं कि अगर गाल पे एक्ने है, then could be one of the reasons that आप पिलो केसेस चेंज नहीं कर रहे हो और आप अपने स्किन केयर को बहुत ही ज्यादा मिक्सअप करके यूज करते हो, बहुत स्किन आपका कंजेस्टेड है. बट इफ यू हैव एक्ने अराउंड योर टी जोन, स्पेसिफिकली अराउंड योर माउथ, इट कुड बी हार्मोनल. सो दैट्स हाउ डार्क सर्कल्स इज वन ऑफ दोज थिंग्स जो आपको आपकी बॉडी एक तरीके से बताती है आपकी बॉडी में कुछ डेफिशिएंसीज हैं या फिर आपकी बॉडी में कुछ तो कहीं तो प्रॉब्लम है. दैट इज व्हाई इट इज appearing. So in this video we're going to talk about all those problems, how to treat them and how to reverse dark circles. But there is a disclaimer, I'm not a dermat or someone in the medical field, but I am sharing all of these things with my own experience, जो मैंने फेस करे हैं, जो रिजल्ट्स मैंने देखे हैं एंड जो प्रॉब्लम्स मैंने अपने लिए आइडेंटिफाई किए हैं. सो डेफिनेटली आई एम गोना टॉक अबाउट ऑल द प्रॉब्लम्स. इनमें से कोई एक प्रॉब्लम आपको हो सकता है, यू विल हैव टू आइडेंटिफाई ऑन योर ओन, बट इन दिस वीडियो आई एम गोना मेक श्योर कि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल नो व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन ऑफ योर डार्क सर्कल्स. वेल, द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू keep in mind that the skin under your eyes is the thinnest skin. मतलब आपकी बॉडी पे किसी भी पार्ट पे आप देख लो, हर जगह स्किन है, बट आपके जो आईज के पास वाला जो स्किन होगा वो काफी पतला और काफी थिन होता है. प्लस डार्क सर्कल्स इज समथिंग जो ओवरनाइट नहीं होता है या फिर जो एक दो दिन में नहीं होता है. इट टेक्स टाइम, इट बिल्ड्स स्लोली. सो अगर आप मिडवे में ही उसका क्योर ढूंढना शुरू कर दोगे, इट्स वेल एंड गुड फॉर यू. Also one more disclaimer that I am not someone who's saying कि dark circles बुरे हैं and treat them अभी के अभी. Dark circles is something very natural and ज़रूरी नहीं है इनको treat करना. But if you're someone who's bugged and if you're someone who wants to treat it, इसलिए मैं ये video बना रही हूँ so that you can go through the process that I went through and which really helped me. तो डार्क सर्कल होने के ना बहुत सारे रीजंस होते हैं. सो इट कैन बी आप बहुत लेट नाइट तक जगते हो, आपका स्लीप साइकिल प्रॉपर नहीं है. लाइक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक एटलीस्ट 6 to 8 hours ऑफ स्लीप. अगर आप वो नहीं ले रहे हो तो वो भी एक रीजन हो सकता है. It could be due to stress, dehydration, weak blood circulation, and then deficiency of iron, deficiency of B12, vitamin D, या फिर genetics भी हो सकते हैं. So maybe all together आपके कोई issue नहीं है, आपका कोई problem नहीं है, but it is genetics, it is just happening for some reason. Now, नो मेथड कैन लाइक डिसअपियर इट. लाइक ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल गायब ही हो जाएंगे, बिल्कुल ही स्किन एकदम आपके लाइक अंडर आईज की स्किन आपके नॉर्मल स्किन से मैच करने लगेगी. बट विथ सम हैबिट्स, लाइक गुड हैबिट्स, यू कैन मेक इट लाइक appear less, I would say. I hope you're getting what I'm trying to say. So yeah, the first thing I want to talk about is massaging that area. So basically, while you're doing your skincare routine at night, try massaging your under eyes थोड़ा सा. I love to use almond oil और ये काफ़ी इफेक्टिव लगा है मुझे as far as other oils are concerned, कि मुझे लगता है कि ये बेस्ट वर्क करता है. सो गेट योर सेल्फ अ गुड आलमंड ऑयल. मेक श्योर कि वो असली आलमंड ऑयल हो, मतलब ऐसा फेक वाला मार्केट में जो मिल रहा है वो नहीं. थोड़ा आइडेंटिफाई कर लेना. यूज दैट ऑन योर अंडर आईज. अच्छे से मसाज करो, रात को सोने से पहले करोगे, सबसे बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं. अब आलमंड ऑयल में क्या होता है ना, थोड़े एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं. प्लस ये क्या करता है, ऑयल है तो ये हाइड्रेट भी करता है, नरिश भी करता है. आप जब मसाज कर रहे हो आपकी ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ा देता है. एंड स्लोली द पेरेंट्स ऑफ डार्क सर्कल्स लाइक फेड्स अवे. थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे प्रोसेस है ये, बट इट इज द मोस्ट इफेक्टिव मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज दिस वर्क्स
दिस इज समथिंग दैट नीड्स वेरी लो एफर्ट। आप रात को वैसे भी स्किन केयर करते ही हो, आप मतलब कुछ ना कुछ आई के अराउंड आई सीरम या कुछ ना कुछ लगा रहे होगे। जस्ट ऑल्टरनेट विथ आलमंड ऑयल, लाइक मे बी यू लव यूजिंग आई सीरम, तो हो सकता है आप ऑल्टरनेट कर लो आलमंड ऑयल के साथ। बट इफ यू आर नॉट यूजिंग एनीथिंग एज सच, तो मैं कहूंगी आलमंड ऑयल बेस्ट है। एंड आलमंड ऑयल से मसाज ना, देर इज नो एज फॉर इट। आप 20s में हो, 30s में हो, टीन एज में हो, किसी भी एज में हो, और आपको अभी से साइंस ऑफ डार्क सर्कल्स दिखने शुरू हो गए हैं, यू कैन स्टार्ट यूजिंग आलमंड ऑयल टू मसाज अंडर आईज। रात में करना, मैं बोल रही हूँ, सच में वर्क करता है। अब देखो क्या होता है ना, जब मसाज करते हो आप, तो आपका पफिनेस भी रिड्यूस कर देता है, ब्लड सर्कुलेशन तो बढ़ता ही बढ़ता है। प्लस साइंस ऑफ एजिंग जो होते हैं, जिनको हम फाइन लाइन्स कहते हैं, वो बहुत जल्दी अपीयर होने लगता है कुछ लोगों के लिए। लाइक इन देयर 20s इटसेल्फ दे स्टार्ट सीइंग फाइन लाइन्स। मुझे भी फील होता है। So I feel like if you are using this massage technique, ऑयल का जो बेनिफिट्स है आपको वो भी मिलता है, प्लस मसाज का जो बेनिफिट्स है आपको वो भी मिलता है। डार्क सर्कल्स के साथ साथ आप फाइन लाइंस को भी ट्रीट करते हो। मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल फाइन लाइंस आएंगे ही नहीं, आएंगे। ऑब्वियसली इट्स अ बॉडी, इट्स मेड इन अ सर्टेन वे, इट्स जस्ट दैट थोड़ा स्लो हो जाएगा प्रोसेस। इंस्टेड ऑफ योर 20s यू माइट स्टार्ट सीइंग इट इन 30s, लेट 30s, समथिंग लाइक दैट। Well, the second technique is to put on cucumber slices on your eyes. So अभी आपने देखा होगा बहुत लोग फेस पैक लगाने के टाइम पे cucumber slices लगाते हैं, and a lot of people do it for fun. To be honest, it is fun, and especially अगर आप summers में करते हो तो बहुत वो ठंडी ठंडी राहत मिलती है। To be very honest, that's one of the thing that you can actually like put in your habit situation where you're using that slices every now and then, क्योंकि सच में उसमें कूलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, डीपफ करता है आपके आईज को, एंड हीलिंग के लिए ना बहुत ईजी कर देता है। सो लाइक व्हेन यू आर डूइंग मसाजेस एंड अदर थिंग्स फॉर योर अंडर आईज, इट विल एक्चुअली एड ऑन एज अ हेल्प कूल डाउन करने के लिए, स्ट्रेस फ्री करने के लिए। आपके आई एरिया में सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है, बिकॉज आज के टाइम पे हम इतना ज्यादा स्क्रॉलिंग करते हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील्स, शॉर्ट्स, व्हाट नॉट, एंड हमारे आईज पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है। स्पेसिफिकली इफ यू आर लिविंग इन द रीजन लाइक दिल्ली NCR, you must be facing a lot with the pollution thing. So such a beautiful way, such an easy peasy way to actually feel relaxed. सारे स्ट्रेस निकाल देता है आपके आई एरिया से, एंड इट इज सो गुड टू डीपफ, टू energize, to do everything possible around your eyes, and that is something you definitely need to incorporate in your routine. आप देख रहे होगे बहुत सारे ब्रांड्स वो आई पैचेस वगैरह लेकर आते हैं, जो एक बॉक्स में 30 to 60 पीसेस होते हैं, एंड आई ऑल्सो लव टू यूज दैट, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है जब मैं कहीं बाहर हूँ या फिर कोई ऐसी जगह या फिर कोई ऐसा वेदर है जहाँ पे कुकुम्बर मैं नहीं यूज करना चाहती हूँ, तब मैं उसको यूज कर लेती हूँ। बट आई सजेस्ट ट्राई कुकुम्बर वाला मेथड, इट वर्क्स द बेस्ट। एंड इफ यू कैन पुट आउट पोटैटो स्लाइसेस तो और भी ज्यादा अच्छा है। अब पोटैटो में क्या होता है ना, ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, तो मैंने ये पोटैटो वाला मेथड तो बहुत ज्यादा ट्राई किया है, स्पेसिफिकली इन माई कॉलेज एंड माई लाइक ऐसा पोस्ट कॉलेज डेज। तो रात भर जगते रहते थे, पढ़ते रहते थे या होमवर्क करते रहते थे, कुछ तो करते रहते थे, तो नींद पूरी नहीं होती थी, एंड ऑब्वियसली उसकी वजह से डार्क सर्कल्स अपीयर होने शुरू हो गए थे मेरे बहुत ही अर्ली एज में, एंड दैट इज व्हाई आई स्टार्टेड यूजिंग। एक तो वो ब्लीच प्रॉपर्टीज के साथ होता है, तो वो थोड़ा सा लाइटन कर देता है, एंड इंस्टेंट रिजल्ट्स भी आपको देखने को मिलेगा। आई मीन आप देखोगे फर्स्ट यूज में आपको एक डिफरेंस दिखेगा। सो आप या तो स्लाइस डायरेक्टली भी लगा सकते हो, एंड इफ यू वांट आप उसका जूस या प्यूरी बना के उसका जूस निकाल के एंड देन पुट इट ऑन अ कॉटन पैड, एंड फिर कॉटन पैड को थोड़ी देर के लिए आप यहाँ पे रख सकते हो। बहुत ज्यादा देर के लिए मत रखना, अदरवाइज ड्राई फील होने लगेगा, तो आपको ड्राई नहीं करना है, अपने राइस को हाइड्रेटेड रखना है। सो मे बी ट्राई डूइंग दैट। पोटैटो वाला भी काफी अच्छा वर्क करता है। अब मैंने जो 3 मेथड्स बताए हैं, इसको कोशिश करो रात में करने का, बेस्ट होता है। कुकुम्बर वाला फिर भी डे टाइम में कर सकते हो, बट पोटैटो वाला रात में ही प्रेफर करना, एंड ऑयल मसाज भी रात में सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। दिन में 2 बार कर सकते हो, गुड फॉर यू। बस थोड़ा आईज के साथ संभाल के रखना, आंखों के अंदर ऑयल मत डाल देना, बाहर करना, थोड़ा दूर करना वाटर लाइन से। ट्राई टू डू देम इन योर नाइट एंड स्किन केयर रूटीन, एंड यू विल सी ड्रास्टिक चेंज विद इन अ मंथ, आई प्रॉमिस। बिकॉज अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो ही आपको रिजल्ट दिखेगा। आप सोचोगे आज कर लिया, फिर अब अगले हफ्ते कर लेंगे, फिर 2-3 दिन बाद कर लेंगे, ऐसे नहीं वर्क करेगा। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। एक मेथड और बता रही हूँ जो मैं थोड़ा कम यूज कर पाती हूँ, ड्यू टू इसका सप्लाई मेरे पास थोड़ा कम होता है। तो ये मेरी नानी मुझे सजेस्ट करती थी, इवन दो माई मदर लाइक डिड इट फॉर गुड ईयर्स, मतलब मैंने उनको देखा है करते हुए। सो
अप्लाइंग रॉ मिल्क अंडर योर आईज. सो इसमें क्या होता है ना, लैक्टिक एसिड होता है जो आपको काफी हेल्प करता है विथ योर, ऑब्वियसली मतलब डीपफ तो करता ही साथ ही साथ लाइटनिंग एजेंट की तरह भी काम करता है. तो बेसिकली रॉ मिल्क को आपको एक कॉटन पैड में लेना है और थोड़ी देर के लिए आप अंडर आईज पे रख सकते हो, स्वाइप कर सकते हो एज अ टोनर, बेसिकली एज अ टोनर यूज कर सकते हो. एंड नॉट जस्ट अंडर आईज, आप पूरे फेस पे भी इसको यूज कर सकते हो. रॉ मिल्क जो होता है वो हाइड्रेट करता है, वो ब्राइटन्स करता है, लाइक as already I have mentioned. So आप वो भी ट्राई कर सकते हो. Even though I have seen changes on others, मैंने पर्सनली इसको अभी ज्यादा ट्राई नहीं किया है क्योंकि I don't have access to raw milk much. But if you want, you can definitely try it out क्योंकि मैंने रिजल्ट्स मम्मा पे और नानी पे देखा है. अब देखो, इसके अलावा ना आपको थोड़ी और भी चीजें करनी पड़ेंगी, जैसे कि थोड़े लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ेंगे. थोड़ा सा ड्रिंकिंग और स्मोकिंग का अगर हैबिट है तो वो आपको अवॉइड करना पड़ेगा. हाइड्रेटेड रखो खुद को, नॉट जस्ट योर लाइक पानी पीते रहो, बट ऑल्सो ऑन योर स्किन थोड़ा सा हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स यूज करो. बहुत ज्यादा एक्टिव्स और ड्राई वाले प्रोडक्ट्स यूज मत करो. अपने अंडर आइज पे बहुत ज्यादा अलग अलग तरह के अंडर आई सीरम्स ट्राई मत करो. स्टिक टू व्हाट वर्क्स फॉर यू, एक्सपेरिमेंट मत करो. जो भी फूड खा रहे हो ट्राई करो कि उसमें वाइटामिन अच्छे मात्रा में हो, B12 हो. विटामिन डी के लिए आप धूप में अच्छे से अपने आप को ड्रेंच करो, अच्छे से सनस्क्रीन लगाकर जाके बैठो थोड़ी देर धूप में, मतलब वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अपनी स्लीप साइकिल ठीक करो, अपना स्ट्रेस का मैनेजमेंट करो थोड़ा सा. यू कैन स्टार्ट विथ मेडिटेशन, योगा, जो भी आपको लगता है. लाइक 10 मिनट्स मेडिटेशन करने से अगर आपको स्ट्रेस फ्री फील होता है, प्लीज डू दैट. डू समथिंग, डू सम अदर एक्टिविटीज इफ यू वांट टू. जो भी आपको लगता है आपके लिए वर्कआउट करेगा फॉर योर स्ट्रेस मैनेजमेंट, ट्राई डूइंग दैट. ऑलराइट, सो एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड कि डार्क सर्कल होना कोई बहुत ऐसी चीज नहीं है कि आपको ट्रीट करना ही करना है. बट इफ यू रियली वांट टू, इट्स समथिंग यू हैव टू मेक श्योर कि आपके दिमाग में सेट हो जाए. पहली चीज, आपको ये नहीं सोचना है कि ये कोई बुरी चीज है या फिर इससे मुझे लोग जज करते हैं. लेट इट बी, लेट पीपल थिंक व्हाट दे वांट टू. जस्ट मेक श्योर दैट अगर आपको डार्क सर्कल्स आने शुरू हो गए हैं तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग मोर ऑन डार्क सर्कल्स, स्टार्ट फोकसिंग ऑन व्हाट डार्क सर्कल्स आर टेलिंग यू. ये जैसे मैंने वीडियो की स्टार्ट में मेंशन किया था कि सो एंड सो रीजंस हो सकते हैं. सो मे बी वन ऑफ दोज रीजंस की वजह से आपको डार्क सर्कल्स हो रहा है एंड यू हैव टू ट्रीट दोज रीजंस इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि आप अपने डार्क सर्कल्स को ट्रीट कर रहे हो. फॉर मी द डेफिशिएंसी ऑफ B12 वाज वन ऑफ द रीजंस. तो मैंने ब्लड टेस्ट करवाया, मुझे पता चला एंड देन आई स्टार्टेड टेकिंग मेडिकेशंस. फिर मुझे पता चला मेरे आयरन की भी डेफिशिएंसी चल रही है, तो मैंने उसके लिए भी अपना मल्टीविटामिन एंड आयरन की जो भी मेडिसिन होती है वो लेना स्टार्ट किया. एंड ट्रस्ट मी, यू विल सी रिजल्ट्स व्हेन यू स्टार्ट ट्रीटिंग योर प्रॉब्लम्स विद द रूट. क्योंकि अगर आप बस ऊपर ही करते रहोगे इलाज तो कुछ भी नहीं होगा. इट विल बी टेम्पररी एंड कुछ भी परमानेंट रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे. बट इफ यू विल ट्रीट इट विद द रूट्स, ऐसे अंदर जाके घुस के ट्रीट करोगे उसको, इट विल एक्चुअली स्टार्ट डिसअपियरिंग इफ यू वांट समथिंग लाइक दैट. So talking of temporary, let's move on to all the temporary methods that you can use to, you know, hide those dark circles in case you want to. Again, it is not something to feel bad about, but let's be honest, it does look very bad. Like ऐसा पांडा आइज जैसे दिखते हैं and it does feel really weird and हम बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं. I personally do it. मतलब मैं बहुत जज करती हूँ खुद को ही. When my circles are super dark, तो मुझे बिना कंसीलर के मैं बाहर स्टेप आउट नहीं करती हूँ. Like I need to put makeup on to make sure that I can step out of the house because I feel very insecure about my dark circles. So if you're someone like that, you can use these temporary like tips and tricks which can actually help you. By the way, before I move on to these temporary tricks, you can also start using an SPF. Let me show you which one I love using. Start using this SPF. So I'm using currently this one from Dot & Key. इससे पहले मैं L'Oreal का यूज करती थी, वो मुझे बहुत पसंद है और उसने मुझे काफी अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं. So this is not like your regular sunscreen. It's more like a tinted sunscreen which I use. मैं आप देखोगे आपको थोड़ा सा ऐसा ना टिंट दिखेगा. आपके स्किन के कलर का आपको लेना होगा. ये शेड्स में आते हैं अलग अलग, तो अपने स्किन के हिसाब से पिक कर सकते हो. And you will just have to apply this under your eyes just like this. And this will ensure कि एक तो वो temporary fixing भी करता है, plus longer run में मैं कहूँ तो एक देखो sun protection भी मिलती है. And ये I don't know, like I cannot go in very deep with the ingredients, but one thing I'm sure of कि tinted sunscreens ना comparatively आपके जो नॉर्मल सनस्क्रीन्स होते हैं उससे ज्यादा प्रोटेक्शन देती है. इवन दो आपके SPFs और जो अदर फैक्टर्स होते हैं PA+++ एंड एवरीथिंग, एक टिंटेड सनस्क्रीन आपको बेटर परफॉर्मेंस देता है, बेटर प्रोटेक्शन देता है. एंड आई फील लाइक अंडर आइज के लिए तो बेस्ट है. मैं तो इसको स्पॉट करेक्शन की तरह भी यूज कर लेती हूँ व्हेन आई एम सिटिंग एट होम.
मैंने नॉर्मल सनस्क्रीन लगाई, बट मैं इसको अपने स्पॉट्स पे लगा लेती हूँ, तो वो स्पॉट्स फेड अवे के लिए भी ना एक टिंटेड सनस्क्रीन बहुत ज्यादा हेल्प करता है. यू कैन गो इन विद एनी टिंटेड सनस्क्रीन यू लाइक. देखो, अगर आपको बहुत ज्यादा ही डार्क सर्कल्स है और आपको अभी धीरे धीरे ऑब्वियसली वो हील होगा, तो आपको बाय द टाइम वो हील होता है तब तक आपको ऑब्वियसली हैव टू हाइड इट. तो गेट योर सेल्फ अ पैलेट लाइक दिस. तो ये क्या है ना, इसमें देखो कलर करेक्शन के कलर्स हैं अलग अलग. एंड इफ यू आर समवन जिसको पता है कि एग्जैक्टली कौन सा कलर पिक करना है फॉर योर डार्क सर्कल्स, डेफिनेटली गो फॉर दोज सिंगल वंस. कंसीलर भी आते हैं, लाइक कलर्ड कंसीलर्स आते हैं. आपके बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स हैं, गो फॉर ऑरेंज या फिर पीचिश ले लो. मैं कहूंगी पीचिश ज्यादा बेटर होता है. सो व्हाट आई लाइक टू डू इज आई लाइक टू मिक्स दिस ऑरेंज विथ ईदर दिस और विद दिस. सो डिपेंडिंग ऑन कितना ज्यादा मेरे डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, बहुत ज्यादा पीक कर रहे होते हैं जब, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, आपके डार्क सर्कल्स किसी दिन बहुत ज्यादा दिखते हैं, किसी दिन नहीं दिखते हैं उतने. सो जिस दिन ज्यादा दिखते हैं मैं ऑरेंज के साथ येलो मिक्स कर लेती हूँ, तो एक अच्छा बैलेंस बन जाता है. या फिर मैं ऑरेंज के साथ ये लाइट ब्राउनिश शेड मिक्स कर लेती हूँ, तो जब मुझे थोड़ा कम पिगमेंट दिख रहा है बट दिख रहा है, तो मैं ऑरेंज मिक्स कर लेती हूँ. अदरवाइज यू कैन गो इन विद अ पीची लाइक दिस थिंग कंसीलर एंड दैट वुड वर्क फाइन फॉर यू. उसके बाद अपना फाउंडेशन लगाना है, लगाओ. स्किप करना है तो फिर अगर स्किप करना है तो यू विल हैव टू गो इन विथ गुड कंसीलर्स. सिर्फ कलर करेक्टर करोगे तो वो पीले पीले या ऑरेंज ऑरेंज भूत जैसे दिखोगे. आई हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर कंसीलर्स. लेट मी शो यू कंसीलर ऑप्शंस इन एवरी प्राइस रेंज एंड हर तरीके का मैं बताती हूँ, ताकि अपने स्किन टाइप के हिसाब से पिक कर सको. फर्स्ट वन इज दिस फुल कवरेज इनसाइट का कंसीलर. सो दिस इज समथिंग वेरी फुल कवरेज, थोड़ा थिक है ये, एंड इसको ना आप स्प्रेड करते हो तो एक बेस की तरह भी, आप फाउंडेशन की तरह भी इसको थोड़ा सा यूज कर सकते हो, बिकॉज इट इज क्वाइट थिक. एंड दिस इज समथिंग, अगर आप मेकअप कर रहे हो और आपका बहुत ज्यादा ड्राई स्किन नहीं रहता है अराउंड योर आईज, तब आप ये यूज कर सकते हो. दिस इज हाइड्रेटिंग. आई विल नॉट से कि हाइड्रेटिंग नहीं है, बट आई फील लाइक ये ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि सुपर ऑयली फील नहीं कराता है, सुपर हाइड्रेटिंग फील नहीं कराता है. So maybe if you're someone who has very dry patches around your eyes, you can skip this. Otherwise 100-200 रुपए में ये अच्छा कंसीलर है. इनसाइड कॉस्मेटिक्स का कंसीलर है, HD कंसीलर है, and this is really good. And my absolute favorite under 300 comes this Swiss Beauty का कंसीलर. So जैसे मैंने आपको कहा ना, थोड़ा लाइट ब्राउन शेड में यूज कर लेती हूँ. तो देखो, आप कंसीलर का मैंने थोड़ा राउंड लाइट कलर का शेड लिया हुआ है, लाइट ब्राउनिश शेड. मैं इसको लगाती हूँ एंड फिर अपना रेगुलर कंसीलर जो मैंने ऑलरेडी देखो खत्म कर दिया, लिटरली मैं इतना ज्यादा इसको यूज करती हूँ, ये मिक्स करके लगा लेती हूँ. एंड देन आई गो इन विथ वट एवर स्किन टिंट और वट एवर आई वॉन्ट टू. तो ये भी काफी अच्छा कवरेज देता है. रियली गुड फॉर ऑयली और ड्राई स्किन या कॉम्बिनेशन स्किन, जैसा भी स्किन है ना, दिस इज परफेक्ट फॉर ऑल द स्किन टाइप. आई थिंक मैं जितने भी कंसीलर्स आज बताने वाले हूँ उसमें सबसे बेस्ट पिक यही होता है मेरा. मेरे हर वीडियो में आई टॉक अबाउट स्विस ब्यूटी के कंसीलर्स एंड दे आर really good. Like the days I don't want to go in with an expensive concealer, I go in with them and मुझे बिल्कुल डिफरेंस नहीं पता चलता कि मैंने महंगे वाले कंसीलर्स लगाए हुए हैं या सस्ते वाले. So I feel like this is really a great pick. Then comes this one from L'Oreal Infallible. It is their full wear concealer. Now this is like a very full coverage concealer, more like the Inside Cosmetics one. But this is really good for all skin type. I would say मुझे ऐसा लगता है कि ये हर स्किन टाइप को सूट करेगा. My mom is dry skin, I am oily skin. हम दोनों को ये काफी अच्छा मैच देता है, like स्किन के हिसाब से. एंड आई फील लाइक अच्छे से इसको यूज करो, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में करना. द लेसर द बेटर, इट्स काइंड ऑफ दैट. सो थोड़ा थोड़ा लेके बिल्डअप करना, बहुत ज्यादा एक साथ मत लगा लेना. एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प यू एज वेल. दूसरा, मुझे हाइड्रेटिंग कंसीलर फ्रॉम एल्फ भी काफी अच्छा लगता है. इफ यू आर समवन हैविंग वेरी ड्राई पैचेस अराउंड योर आईज, आई थिंक दिस इज गोइंग टू हेल्प रियली वेल. एंड अच्छे से अंडर आईज को हाइड्रेट किया करो जब भी कंसीलर यूज करना है. एंड देन जस्ट गो इन विद द कंसीलर. एल्फ का भी कंसीलर मुझे काफी पसंद है. एंड इफ यू हैव अ बजट, don't look any further and get yourself this one. This is from Too Faced. I'm so glad I tried this. मैंने randomly एक सेल पे इसको ले लिया था and I thought of trying it, and the moment I started using this I could see the hype about this. Well, जब मैंने लिया था उतना hype था नहीं. मेरे लेने के बाद literally everyone on the internet started talking about this concealer, and क्योंकि मैं भी यूज कर रही थी, तो I can say why they were vouching so much about this concealer and why still people मतलब अभी भी वो बात करते हैं इस कंसीलर के बारे में, बिकॉज दिस इज दैट काइंड ऑफ कंसीलर ना, अगर ये ले लिया ना, यू आर नॉट गोना गो बैक टू एनी अदर कंसीलर्स. थोड़ा हाई एंड है, आई वुड से इट कैन कॉस्ट यू अप टू 2000-3000 रुपीज, बट रियली गुड वन. देयर आर डेज जब मुझे बिल्कुल भी स्किन टेंट या फाउंडेशन लगाने का मन नहीं करता है, गो इन विद दिस कंसीलर बिकॉज दिस कवर्स होल ऑफ माई फेस. मुझे इसके साथ कलर करेक्टर की भी जरूरत नहीं होती, बिकॉज दिस इज मोर लाइक अ करेक्टिंग कंसीलर एंड इट डज द जॉब फॉर मी. मेरा शेड मैच भी काफी अच्छा बैठता है इसके साथ.
रियली गुड कंसीलर। अगर बजट होगा तो यही ले लेना, बाकी तो फिर स्किप भी कर सकते हो। एंड स्विस ब्यूटी और ये दो में से जो भी आपको बेटर लगे वो ले लो। बाकी का भी मैंने रिव्यू इसलिए दे दिया बिकॉज दे आर रियली गुड एंड यू कैन एक्चुअली गेट योर हैंड्स ऑन देम अगर सेल वेल पे मिल जाए, बट अपनी स्किन टाइप के हिसाब से लेना, जैसे जैसे मैंने एक्सप्लेन किया उस हिसाब से। माय नेक्स्ट टिप वुड बी टू यूज सम आई केयर प्रोडक्ट्स। नाउ आई नो दैट मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में ऐसे बिल्कुल नेचुरल चीजें करने को बोली थी, बट इन केस इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग ऐसा फटाफट क्विक रिजल्ट्स देना शुरू करें, यू कैन start doing home remedies, start taking off your skin inside out, bodies inside out, and then you can like include these things in your skincare routine. सारे लेने की जरूरत नहीं है, एक ही लेना है, but let me explain कौन कौन सा क्या क्या है. So these are 3 different eye serums I got. Like there are n number of eye serums that I've tried, but ये 3 ऐसे हैं जो मेरे लिए बहुत अच्छा वर्क करते हैं. First one is from Wishcare. This brand knows how to formulate skincare, body care, hair care, whatever it is. Like इसके कोई भी प्रोडक्ट ने मुझे अभी तक ऐसा लेट डाउन फील नहीं किया है, कराया है, अपार्ट फ्रॉम द लिप टिंट. एंड आई फील लाइक इसका अंडर आई सीरम बहुत इफेक्टिव है. एक हफ्ते रेगुलर यूज करके देख लो, लिटरली यू विल सी योर अंडर आईज ब्राइटनिंग अप धीरे धीरे. इसमें कैफीन है तो ये ना डार्क सर्कल्स के साथ साथ पफीनेस को भी टारगेट कर लेता है एंड आपके फाइन लाइंस को भी देख लेता है, क्योंकि इसमें हाइलुरोनिक एसिड है, नाइसिनामाइड है एंड रेटिनॉल भी है. सो इसमें भी आलमंड मिल्क बाकी इंक्लूडेड है कैफीन के साथ ही. सो इट्स लाइक अ ऑल इन वन प्रोडक्ट जो आप रात में यूज करना, दिन में यूज मत करना. रेटिनॉल है इसमें एंड थोड़े रेगुलर यूज के बाद आपको रिजल्ट्स दिख जाएगा. आई फील लाइक दिस इज द बेस्ट. मतलब ये दोनों में से भी बेस्ट है और थोड़ा अफोर्डेबल भी है. ये सबसे चीपर है मतलब तीनों में से. सो आई फील लाइक दिस इज द बेस्ट. Get your hands on this if you are struggling from dark circles and you want to cure it. मैं नीचे लिंक दे दूंगी. I'll try to find a like discounted link for you all so that you can shop. Then is this one from Excess White. It's their vegan collagen eye serum. ये again देखो कोरियन और ये जो जापानीज ये सारी जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, ये काफी अच्छे इफेक्टिव होते हैं क्योंकि वो करते हैं एंड फिर वो इंडिया में आते हैं बड़ी टाइम के बाद. बट फिर मैंने ट्राई किया तो मुझे I know like why people are vouching so much about these products. So this is vegan collagen eye serum. This is really good if you want to hydrate your eyes. If you feel आपके आईज बहुत पफी रहते हैं, क्योंकि इसका जो एप्लीकेटर है ना वो थोड़ा ऐसा है, तो ये डीपफिंग के लिए बहुत अच्छा है. आई मसाज के लिए बहुत अच्छा है. इफ यू आर समवन बीइंग वेरी लेजी, आपको हाथ गंदे करने का मन नहीं है, बहुत इजीली आप आई मसाज कर सकते हो. इसमें पेप्टाइड्स हैं 5 तरह के एंड फिर हाइलुरोनिक एसिड भी है, सुपर हाइड्रेटिंग. तो ये तो मैं ऐसे यूज करती हूँ ना, लाइक डे टाइम में अगर मैं काम कर रही हूँ लैपटॉप पे, मेरे आईज में थोड़ा ड्राइनेस फील हुआ, खोला, लगाया, आई एम गुड टू गो. लाइक super easy to use, something that depuffs your eyes also. And I love this one because इसमें ना ऐसा कोई बहुत एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं है लाइक रेटिनॉल या फिर बहुत ही ज्यादा कुछ विटामिन सी काइंड ऑफ थिंग्स. विटामिन सी तो अवॉइड ही किया करो आईज के पास. वेल एनीवेज ये क्या है ना, बहुत सेफ लगता है मुझे. डे टाइम पे भी मैं यूज कर पाती हूँ, कभी ऑन द गो भी चलते फिरते भी लगा लेती हूँ मैं. तो आई फील लाइक दिस इज दैट काइंड ऑफ आई सीरम. थोड़ा महंगा है बट इफ यू हैव द बजट यू कैन ट्राई दिस, एंड इफ यू हैव अ बजट ट्राई दिस ऑल्सो, क्योंकि ये तो ऐसा है कि बजट नहीं भी है तो भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये काफी थोड़ा सा आपको एक पी साइज अमाउंट यूज करना है एंड इट लास्ट सुपर लॉन्ग. मेरा ये दूसरा ट्यूब है वैसे तो, पर ये अभी भी काफी चल रहा है. लाइक मुझे हो गए 1-1.5 महीने इसको यूज करते हैं, बट अभी भी देखो चल रहा है, बिल्कुल सिर्फ यहीं तक खाली हुआ है ये. सो या काफी क्वांटिटी रहती है. Now this is Revive Eye Serum. जिंक्सिन और रेटिनॉल 2 हैं इसमें. परफेक्ट फॉर एंटी एजिंग एंड फाइन लाइंस. तो अगर आपको अभी बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स के साथ साथ बहुत ही ज्यादा बैगी और फाइन लाइंस होने शुरू हो गए हैं, आई थिंक दिस इज रियली ग्रेट. इसका जो रेटिनॉल है इट्स बेटर देन रेटिनॉल आई गेस. सो वो बहुत इफेक्टिव मुझे लगता है. एक इंस्टेंट डिपफिंग फील होता है आपको ये लगा के. आई फील लाइक इट्स अ रियली गुड सीरम. इफ यू हैव नॉट ट्राइड दिस यू डेफिनेटली शुड. तो मैं इन तीनों में से ये कहूंगी कि विशकेयर वाला और ये वाला जो 2 सीरम है ये आप ट्राई कर सकते हो. अपने बजट के हिसाब से ले लो, वर्क करेगा. आई थिंक दिस इज मोर इफेक्टिव कंसिडरिंग द फैक्ट इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स हैं. बट द ओनली कॉन इज कि आप इसको दिन में नहीं यूज कर सकते. दिन में ये दोनों यूज नहीं कर सकते. एंड दिन में अगर यूज करने के लिए कुछ चाहिए तो ये ले सकते हो, बट दिन में ऐसे नीड नहीं है. मैं सच बोलूँ तो नॉर्मल मॉइस्चराइजर को अच्छे से लाइक 2 लेयर लगा लो. आई थिंक दैट्स इनफ. दिन में नहीं चाहिए होता है. इट्स जस्ट दैट आई प्रेफर टू बी फैंसी एंड इसलिए मैंने ले लिया है. बट हाँ, आप प्रेफर करो कि रात में ही यूज करो. दिस इज समथिंग इन द टेम्पररी सेक्शन बिकॉज थोड़ा सा वही है ना कि आप जो ऑलरेडी चीजें कर रहे हो उसके साथ एक केक पे चेरी हो जाएगा. नॉट समथिंग कि आपको ऐसे ड्रास्टिक चेंज दे देगा. यू विल ऑल्सो हैव टू मेक अदर चेंजेस. एंड नाउ माई लास्ट टिप वुड बी टू वेयर काजल, मस्कारा,
eyeliner, whatever possible, so that आपके eyes पे ना एक अलग attention draw हो. So let's say मस्कारा लगा लिया या फिर ड्रामेटिक सा कुछ आई लुक कर लिया या फिर बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक भी मत करो, बट काजल लगा लिया, आईलाइनर लगा लिया, तो उससे क्या होता है ना, आई पॉप हो जाता है एंड जो सारा अटेंशन है ना वो काजल, आईलाइनर, मस्कारा उस पर चला जाता है. तो डार्क सर्कल्स थोड़े से ना ऐसे दब से जाते हैं. सो आई थिंक दिस टिप इज समथिंग दैट हैव बीन वर्किंग आउट फॉर मी. मैं कॉलेज टाइम पे बहुत लगाती थी ये ट्रिक, एंड ये ट्रिक मेरे लिए बहुत ज़्यादा वर्क करता था. तो आई थिंक दिस इज द मोस्ट टेम्पररी ट्रिक दैट यू कैन डू, ऐसे चलते फिरते भी, घर पे बैठे बैठे भी. So it's something you can definitely try on, and I hope you enjoyed watching this. If you did, watch this video next because YouTube thinks कि बाकी लोगों को ये वीडियो काफी अच्छी लग रही है, आपने डेफिनेटली नहीं देखी है. So जाओ जाके देखो. Let me know how you feel about this video. कमेंट करना अगर कुछ और डाउट्स या कुछ कंफ्यूजन हो, कुछ और क्वेश्चंस हो तो कमेंट में जरूर बताना. I'm gonna see you there. Bye.